Hello everyone, and welcome to our new lecture series on logic. So, first of all, let us understand the course, the content of this lecture series that we are going to discuss. First thing first is we are going to define logic and some of the important formulas, the truth table, um, and then we'll be dealing with propositional logic, okay, and how to derive new conclusions from existing statements or proposition, or we can say the given statement. Okay, so we'll learn how to use rule of inference in case of propositional logic, and then the first order logic, in which some of the quantifiers are used, and instead of hard coded propositional logic, we'll use some sort of a variable as well. Okay, so we'll be discussing the rule of inference only in the context of propositional logic, because every formula and every rule will be similarly applied to the first order logic as well. Okay, so first of all, let us divide logic. The main aim of the logic is to provide rules to verify the validity of our argument. Okay, so suppose we are given some input arguments, and now we need to verify whether another given argument can be derived from the input one. Okay, so suppose you have been given that there is there is some sort of a humidity, and clouds are scrambling over the sky. So is it plausible that there is more chances of rain today? Okay, so these kind of things will be discussed. Okay, so now these rules these rules actually, the main aim of the logic is to provide the rules to actually verify the validity of argument, and these rules are given in terms of propositions. Okay, so the key thing that we need to know is what is a proposition. Okay, so proposition is a declarative statement or sentence, okay, which is either true or false, but not both. Okay, so there is no fuzzy in it, there is no fuzzy logic behind this. Everything that is either true at a time or false at a time can be referred to as a proposition. For example, 2 plus 2 equals to 5. Okay, it is wrong, so it is false. Okay, so according to the definition, which is either true or false, but not both at the same time. Okay, so if you say that they may rain, okay, uh, it is raining. Okay, so it is either raining or not raining, so it can be termed as a proposition. Okay, Delhi is a city, obviously it's a true statement. Okay, so it is also a proposition. All right. Okay, so a proposition can take only two values, true or false. So if we can take one of the two possible true values, it only can take one of the two possible value of true and false, but not both at the same time. Okay, so suppose we are dealing with only one proposition. Okay, so proposition can also be referred by a variable. We already know what is a variable. Okay, so if we are dealing with only single variable, so only true and possible combination are present with that variable. Okay, but suppose if we are dealing with two variables or two proposition at the same time, so their ordering of assignment of values also matters. Okay, for example, if you are dealing with two propositional variable, so they may have truth and true value. Okay, there may also be assigned true and false value. They may be assigned false and true, and they both be assigned false values. Okay, so we have two assignment for a variable. Okay, so if we are combining another variable in the same manner, so we'll have how many possible assignment? 2 into 2. Okay,
दो वेरिएबल के लिए कितने हो गए, 2 into 2, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज if if we are dealing with some sort of a complex logic and we need to quantify or we need to take three variables into account. Okay, so for each possible assignment of true value or one of the value of r, there may be four different assignments of p and q. Okay, or let us put it another way, for each value of, for each possible value of p, for each possible value of p, we will have will have four different combination of assignments for q and r. ठीक है, क्यों? q and r के लिए, p and q के लिए जैसे हमने दो वेरिएबल के केस में देखा था, देयर फोर असाइनमेंट्स, तो यहाँ भी वैसे ही सिचुएशन है। तो यहाँ पे चूंकि p की सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू के लिए ये चारों रिपीट होके एंड अगेन दे विल बी रिपीटेड फॉर फॉल्स वैल्यू एज वेल। ठीक है, तो इसका मतलब कितने हो गए, तीन वेरिएबल के केस में हमारे पास कितने टोटल पॉसिबल असाइनमेंट्स हो गए, 8। ओके, सो इट गोज अराउंड, इट गोज लाइक 2 to the power n पॉसिबल असाइनमेंट। ठीक है, वेयर n बी द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये क्यों बताया गया आपको, we'll have we can have two popular method of validating a statement. Okay, एक तो क्या है, ट्रूथ टेबल। we'll just get to what is a truth table and then we'll discuss the more mathematical approach, more programmable approaches, which is rule of inference. ठीक है, so as we already discussed, for n variable we'll have how many possible assignment for each variable, 2, and that is why combining or taking into account all the possible variable at the same time will have 2 to the power n possible assignments. Okay, so proposition can be combined using connectives. Okay, तो suppose करो आपने बताया Delhi is a city, okay, which is just which is falling into national capital region. ठीक है, और नोएडा इज अ नियर बाई सिटी, नोएडा इज अ सिटी, और गौतम बुद्ध नगर इन यूपी एडमिनिस्ट्रेशन वी कॉल इट। ओके, सो दैट इज जस्ट बिसाइड द दिल्ली। ठीक है, तो आपने देखा कि जस्ट बिसाइड द दिल्ली कैन बी प्रोपोजिशन, नोएडा इज अ सिटी इज आल्सो प्रोपोजिशन, एंड हमने क्या किया, उसको एंड ऑपरेटर का यूज करके कंबाइन कर दिया। तो ऐसे ही एंड और नॉट, इस तरीके के कनेक्टिव्स या बेसिकली फंडामेंटल कनेक्टिव्स जिनको बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करके वी कैन बिल्ड okay, apologies for inconvenience and let us go. So as I was discussing, two or more proposition can be combined with some sort of a connectives, and what are these connectives, we'll be discussing those as well. Okay, so negation, first of all, is negation. A proposition can be negated using this unary connective or unary operator. Unary operator मतलब क्या है, इसको अप्लाई करने के लिए हमें दो प्रोपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रोपोजिशन के आगे इसको लगाने से उसकी वैल्यू निगेट हो जाती है, उसका मीनिंग निगेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली इज ए सिटी, दिल्ली इज ए सिटी, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली इज ए सिटी। ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेशन ऑफ पी करने के बाद दिल्ली इज नॉट अ सिटी। ठीक है, अब ट्रू है फॉल्स है दैट डजंट मैटर, किसी भी वेरिएबल के आगे हम इसको लगा के उस प्रोपोजिशन के मीनिंग को निगेट कर सकते हैं। ठीक है, वी विल सी जस्ट इन अ बिट। ठीक है, दूसरा है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज एन अपवर्ड एरो, अपवर्ड हाफ एरो। ठीक है, इसका इसका मीनिंग क्या होता है, एंड। ठीक है, दिस इज एन एंड ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज एन एंड ऑपरेटर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज डिसजंक्शन। ठीक है, जस्ट अ डाउनवर्ड हाफ एरो, और इसको बोलते हैं हम और ऑपरेटर। ओके, और ऑपरेटर। और उसके बाद हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव्स हैं, जिसमें से इम्प्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसको हम एक लेफ्ट टू राइट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द एरो कैन बी अ सिंगल लाइन, या हम इसको 2 लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जस्ट इसका एक और वेरिएशन है बाय इम्प्लीकेशन, जिसमें एरो दोनों साइड में होते हैं। अभी ऐसा सिंगल साइड और दोनों साइड क्यों है, हम इसको देखते हैं जस्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट अस डिस्कस निगेशन। निगेशन मतलब क्या है, नॉट पी। तो अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। और पी की वैल्यू अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी विल बी। इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल क्या होता है, मैंने फॉर्मली डिफाइन नहीं किया है, बट ट्रूथ टेबल इज अ वे टू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट, हाउ द करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट ऑफ वेरियस ट्रूथ वैल्यूज इम्पैक्ट द आउटपुट। ठीक है, उसको जस्टिफाई या उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, पी और क्यू, उसके सारे पॉसिबल असाइनमेंट आपने देख लिए। ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और पी कंजंक्शन क्यू होता है, क्या होता है, एंड ऑपरेटर। एज आई सेड, इट इज एन एंड ऑपरेशन। तो एंड का मतलब क्या है, अगर आपके सामने 2 सेंटेंस रखे जाए पी एंड क्यू, ठीक है, तो कंबाइंड पी एंड क्यू कंबाइंड ट्रू कब होंगे, जब आपके दोनों सेंटेंस सही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, किस केस में पी कंजंक्शन क्यू ट्रू होगा, ओनली इन केस बोथ बोथ पी एंड क्यू आर हैविंग द ट्रू वैल्यू। उसके अलावा बाकी सारे केसेस में दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको जो है एंड की जगह पे फॉल्स का भी प्रयोग, एंड की जगह पे बट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वो कैसे किया जाता है, लेट अस सी दैट। सन सन शाइनिंग बट इट इज रेनिंग। ठीक है, सन शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। ठीक है, तो मैथमेटिकल सिंबल तो इसका वही होगा। ठीक है, अगर मैथमेटिकली इसको बोलेंगे तो कंजंक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, बट वाइल राइटिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, इट मे बी रिटन एज, और ये बट और एंड हमेशा इंटरचेंजेबल नहीं है, इट इज बेसिकली आपके इंग्लिश ग्रामर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सन शाइनिंग बट इट इज रेनिंग, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सन शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं पे आपको ध्यान देना है, जहाँ पे मैथमेटिकली कंजंक्शन ऑपरेटर और इनका इस्तेमाल किया जाएगा, कंजंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां तक तो ठीक है। कहीं कहीं पे ये एक मेयर वर्ड होता है और वो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कनेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैक एंड जिल बोथ वेंट अप टू द हिल, यहाँ पे ये कनेक्टिव है। ठीक है, और क्या है, जैक एंड जिल आर कजन। ठीक है, जैक एंड जिल आर कजन। अब यहाँ पे क्या है, दीज आर नॉट कनेक्टिव। ठीक है, क्योंकि कजन कैसा ऑपरेटर है, कजन कजन क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये एक कनेक्टिव नहीं बनाता। तो ये सिंपली आपके इंग्लिश सेंटेंस का खेल है। ठीक है, आपको ऐसे ही देख के समझ में आ जाएगा। देयर इज नो मच ऑफ लॉजिक टू डिस्कस बिहाइंड इट। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास है कंजंक्शन, और इन इंग्लिश वी ट्रीट एज एन और ऑपरेटर। तो और में क्या होगा, सेम ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका भी। तो पी एंड क्यू में बी असाइन 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और में क्या होता है, अगर आपके पास 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, तो आपका फाइनल आउटकम, अगर हम डिसजंक्शन यूज करते हैं या और ऑपरेटर यूज करते हैं, तो फाइनल आउटकम विल बी ट्रू इफ एनी ऑफ देम आर ट्रू। ठीक है, तो ट्रू ट्रू के केस में भी ये पी डिसजंक्शन क्यू विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स के केस में भी दिस विल बी ट्रू, फॉल्स ट्रू के केस में भी दिस विल बी ट्रू। ओनली इन केस ऑफ फॉल्स एंड फॉल्स your disjunction will yield into a false outcome. Okay, now what we are having a more complex propositions. ठीक है, और composite proposition। ठीक है, P आपका एक proposition है, Q आपका एक proposition है, R आपका एक proposition है। ठीक है, combining Q and R with a conjunction will yield into another proposition। ठीक है, और जो भी आउटकम आएगा उसके साथ आपने P का डिसजंक्शन किया, देयर दिस एंटायर थिंग इज आल्सो अ proposition। ठीक है, तो how do we verify the truth value, or how do we observe the truth value of this entire thing? ठीक है, P Q and or
पी क्यू का तो हमें पता है, आर का हमें पता है, बट पूरी की पूरी जो कंपोजिट प्रोपोजिशन है, इनका ट्रूथ असाइनमेंट या इनकी पॉसिबल आउटकम हम कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखो हाउ मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स आर देयर, 3, पी क्यू एंड आर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पॉसिबल असाइनमेंट बना लेंगे। कितने असाइनमेंट बनेंगे, 8, ठीक है। कैसे बनेंगे, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। अब आप क्या करोगे, बिकॉज देयर इज अ ब्रैकेट, इनसाइड ब्रैकेट, तो हमें क्यू कंजंक्शन आर कैलकुलेट करना है। तो क्यू कंजंक्शन आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग दीज लास्ट 2 कॉलम्स, ठीक है। तो क्या होगा, कंजंक्शन में ये ट्रू होगा, और कहाँ कहाँ पे दोनों ट्रू हैं, ओनली दिस। तो सिर्फ क्यू कंजंक्शन आर में यही 2 ट्रूथ असाइनमेंट होंगे, रेस्ट ऑफ द एंटायर थिंग विल बी फॉल्स, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो भी ये क्यू कंजंक्शन आर आया हुआ है, क्यू कंजंक्शन आर आया हुआ है, अब जो भी हमारा क्यू कंजंक्शन आर आया हुआ है उसका हम डिस्जंक्शन करेंगे विथ पी, ठीक है। तो क्या होगा, ओनली दिस कॉलम एंड दिस कॉलम विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। और इस पे आप, इन दोनों कॉलम पे आप क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होगा, और, तो ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू। फिर ट्रू और फॉल्स क्या हो गया, ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या हो गया, ट्रू। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, ट्रू। एंड इन तीनों में ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आपका यहाँ पे भी आउटकम में आ गया फॉल्स, ठीक है। तो कैन वी से दैट p disjunction q conjunction r is always true, no, okay, so this is false. Now let us discuss one of the most important connectives, okay, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोला, पूरे आपके लॉजिक का जो भी डेरिवेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कनेक्टिव यही है, ठीक है। और जो आप थ्योरम प्रूविंग देखते हैं, जो डिस्क्रीट के एप्लीकेशंस हैं, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम बनते हैं लॉजिकल थ्योरम प्रूविंग के, वो इसी लॉजिक पे बने होते हैं, ठीक है। कैसे, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। कैसे, एरो फ्रॉम वर्ब प्रोपोजिशन टू अनदर वन, और वो कैसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका जो सूत्र वाक्य है वो क्या है, अ ट्रू स्टेटमेंट कैन नॉट इम्प्लाई फॉल्स, ठीक है। सो सो अ ट्रू स्टेटमेंट कैन नॉट इम्प्लाई फॉल्स, ठीक है। कैनॉट इम्प्लाई फॉल्स मतलब सिर्फ ये चीज फॉल्स होगी, उसके अलावा बाकी जितने भी पॉसिबल असाइनमेंट हैं वो सारे के सारे ट्रू होंगे, ठीक है। तो ये पी इम्प्लीकेशन क्यू फॉल्स कब होगा, ओनली ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। अगर ऐसी कंडीशन है तभी ये आपका इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा, अदरवाइज इन और अदर केसेस ये ट्रू होगा, ठीक है। अब इसका और भी सिंप्लीफायर वर्जन देखते हैं क्या होता है, जस्ट इन अ बिट। ओके, तो जैसे आपको दिया गया है, ये 3 आपके टेबल दिए गए होंगे हैं पी क्यू आर, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि वेरीफाई करो कि क्या पी डिस्जंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन आर इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, चूंकि यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, तो इम्प्लीकेशन के ट्रू या फॉल्स होने की जांच के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या पी, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट जब ट्रू है, एट द सेम टाइम क्या सेकेंड प्रोपोजिशन हमारा फॉल्स है क्या, किसी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यूजिंग जस्ट और इंस्टिंक्ट, हिट एंड ट्राई, किसी भी तरीके से, इफ यू वांट टू डू इन शॉर्ट, तो आपको पूरा ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेरीफाई दिस, जस्ट चेक दिस, क्या ये चीज पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो लेट अस सी, हमको क्या करना है, पी डिस्जंक्शन क्यू को हमें ट्रू असाइन करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उन दोनों को हमने ट्रू असाइन कर दिया, ठीक है। दिस आर द मोस्ट पॉसिबल केस। और दूसरा आर है, आर क्या है, पी पी कंजंक्शन क्यू से इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको इंडिपेंडेंटली फॉल्स कर दिए,
अब क्या हो गया, एट द सेम टाइम फर्स्ट आर्गुमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड आर्गुमेंट इज फॉल्स। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दिस कैनॉट बी ट्रू ऑल द टाइम। ठीक है, ये हमने जांच कर ली इस चीज की। ठीक है, नाउ वी आर सेइंग दैट समवन इज सेइंग दैट दिस प्रोपोजिशन इज ऑलवेज ट्रू। ओके, तो वो कैसे हम चेक करेंगे, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमें इस चीज को ट्रू करना है, ओके, और इस चीज को फॉल्स करना है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में और कोई वेरिएबल नहीं है कनेक्टिव्स के साथ में, तो हमें p को फॉल्स रखना ही पड़ेगा, तो हमने p को फॉल्स रख दिया। ठीक है, अब p यहाँ ऑलरेडी फॉल्स है और यहाँ पे डिसजंक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, डिसजंक्शन मतलब हम दूसरे वेरिएबल को या दूसरे प्रोपोजिशन को हम ट्रू कर सकते हैं, हमने ट्रू कर दिया। अब इन दैट केस ये आपका एंटायर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो दिस इज नॉट, नो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नाउ वी हैव चेक दिस, वी हैव वेरीफाइड दिस। आप बोल रहे हैं कि चेक करो कि ये क्या ऑलवेज ट्रू है क्या। ओके, तो क्या करेंगे, हमें इसको फॉल्स बनाना है, हमें इसको फॉल्स बनाना है। ठीक, और इसको फॉल्स बनाने के लिए हम हमारा ये भी फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही हम राइट साइड को फॉल्स बनाएंगे हमारा लेफ्ट साइड भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ही केसेस में आपका फर्स्ट आर्गुमेंट ट्रू ही निकलेगा। और फर्स्ट आर्गुमेंट ट्रू हो गया इन दैट केस, सॉरी, फर्स्ट आर्गुमेंट फॉल्स हो गया तो सेकेंड आर्गुमेंट हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल इम्प्लीकेशन और कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसके कई और प्रारूप हैं। ठीक है, लेट अस सी दैट इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ने के तरीके होते हैं। P implies Q। ठीक है, जैसे हम ये देख सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द इनपुट कंडीशंस और ये उसका आउटकम है। तो जैसे आप कोई थ्योरम प्रूव करते हो तो सम स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी गिवन, और उन गिवन स्टेटमेंट के बेसिस पे थोड़ा सा आप कुछ चेंज वेंज करके, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करके आप ये चीज प्रूव करते हो। नॉर्मल मैथ में भी ऐसे ही होता है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम सिंपल मैथ की भाषा में कह सकते हैं P इम्प्लाइज Q। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में और लेके आए तो हम इसको कह सकते हैं इफ P देन Q। मतलब कि अगर P ट्रू है, अगर P आपका एक एंटीसीडेंट है तो Q उसका कॉन्सिक्वेंस है, और अगर P ट्रू है तो आपका Q उसका आउटकम है। दूसरे तरीके से इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, इफ देन की जगह पे हम वी कैन यूज P ओनली इफ Q। ठीक है, और इस अब इन तीनों फॉर्मेट में क्या है, P पहले आया हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मेट में आपको तीनों प्रारूप में Q पहले आएगा। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ, इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ अगर आप चेंज करते हो तो आपको इनकी जो ऑर्डरिंग है P और Q की वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो सेम P इम्प्लीकेशन Q को हम और कैसे लिख सकते हैं, Q इफ P, मतलब वही है, इफ P देन Q को हमने क्या किया, इसको लाइक पैसिव वॉइस में लिख दिया, तो Q इफ P। दूसरा क्या तरीका है, Q फॉलोज फ्रॉम P। और सबसे लास्ट में क्या है, Q अनलेस निगेशन ऑफ P। अनलेस क्या है, वही सेम चीज, दीज आर सेम थिंग, बस इफ की जगह पे आपने अनलेस लिख दिया तो अगले वाले को भी आपको निगेट करना पड़ा। ठीक है, दीज आर नॉर्मल इंग्लिश। आप एक बार जस्ट पॉज द वीडियो एंड वेरीफाई, आप चेक करोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफरेंट देन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब नाउ विल मूव टू डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली इस इट इज ट्रीटेड एज, इट इज डबल साइडेड इम्प्लीकेशन। मतलब P, दिस सिंपली मीन्स P implication Q, P implication Q एंड का मतलब कंजंक्शन Q implication P, Q implication P, दिस सिंपली मीन्स दैट, है ना। तो अब मुझे बताइए कि इस तरीके के आई मीन जब हमने इसको इम्प्लीकेशन में ब्रेक कर दिया, सो वी कैन सिंपली ड्रॉ इट्स ट्रूथ टेबल। ओके, तो ये ट्रू कब होगा आपका, ठीक है, व्हेन वन साइडेड इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होगा, जब आपका
P ट्रू और Q फॉल्स हो, ठीक है। लेकिन ये डबल साइडेड इम्प्लीकेशन होता है। इसका मतलब दूसरे केस में अगर आपका Q ट्रू और P फॉल्स है तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली अगर P और Q दोनों फॉल्स हैं एट द सेम टाइम तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका डबल इम्प्लीकेशन लॉजिक है। इसका यूज हम करते हैं अगर इफ यू रिमेंबर प्रूफ जो होते हैं अलजेब्रा के, तो या किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के, जब हम इक्विवेलेंस चेक करते हैं, ठीक है। आपने देखा, आपने शायद नोटिस नहीं करा कि P और Q जब दोनों की वैल्यू ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है, और P और Q दोनों की वैल्यू फॉल्स है तब भी रिजल्ट आपका फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब हम डूबेंगे तो आपको भी डुबाएंगे, और हम ऊपर रहेंगे तो आपको भी ऊपर रखेंगे। इट सिंपली मीन्स बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो किसी भी थ्योरम को अगर किसी और तरीके से लिखा या पढ़ा जाता है, ठीक है, बट दोनों का आउटकम सेम होता है, तो वहां पे इफ एंड ओनली इफ करते हैं, ठीक है। इट सिंपली मीन्स व्हाट? इट सिंपली मीन्स इक्विवेलेंस। ओके ओके। तो बाकी ये बताया ही आपको। हाँ, एक चीज और, टॉटोलॉजी। अ प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू, उसको हम टॉटोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि ये चीज हमने अभी ऊपर देखी है, P कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P, ठीक है। P और Q की जितने भी पॉसिबल ट्रूथ असाइनमेंट है, आप सबको चेक करोगे एंड यू विल फाइंड आउट कि ट्रूथ टेबल में इसकी सारी वैल्यू ट्रू आ रही है। इफ दैट इज द केस देन दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन इज सेड टू बी अ टॉटोलॉजी, ठीक है। उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। इन द रिवर्स केस, इन द कन्वर्स केस क्या होगा? अगर ये सारे वैल्यू फॉल्स होते एक साथ में, सारे वैल्यू एक साथ फॉल्स होते तो क्या बोलते हैं उसको? बेसिकली लेट अस सी इन अनदर वे। अभी ऊपर आपके दो और वर्जन है इसके। ओके, आप बोल रहे हैं कि इज पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी इज अ टोटोलॉजी? ऑफ कोर्स इट इज। अगर आपका पी ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा, और डिसजंक्शन हमने यूज किया है तो कोई ना कोई ट्रू चाहिए, एक ही ट्रू चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसको फॉल्स किया तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इन 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 बोथ द वे विल गेट अ टोटोलॉजी, ठीक है। नाउ द कंट्राडिक्शन, as I was saying कि what if all the possible assignments yields in false value, ठीक है। सारे फॉल्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन। किसी एक प्रोपोजिशन के सारे पॉसिबल असाइनमेंट जितने भी हैं, सबको चेक करने पे अगर सिर्फ फॉल्स रिजल्ट आता है तो अ प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स, देन दैट इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन, या इसको दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में अब्सर्डिटी भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेम एज द लास्ट वन, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। क्योंकि कंजंक्शन यूज करा है तो हमारे दोनों साइड ट्रू होने चाहिए, बट कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे कि अगर पी ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा, पी अगर फॉल्स करेंगे तो निगेशन ऑफ पी ट्रू हो जाएगा। इन बोथ वे एक ना एक आपका हमेशा फॉल्स रहेगा, एंड इन दिस वे विल गेट ओनली अ फॉल्स असाइनमेंट, ओके। और इन दोनों के बीच का जो केस है, व्हाट इफ सम ऑफ द पॉसिबल असाइनमेंट्स आर ट्रू एंड सम ऑफ द पॉसिबल असाइनमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन इज सेड टू बी सेटिस्फिएबल। सेटिस्फिएबल मतलब क्या है? फॉर सम ऑफ द असाइनमेंट इट सेटिस्फाइज द ट्रू कंडीशन, और कुछ के लिए ये फॉल्स करता है, या दूसरे शब्दों में इसको कंटिजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो अ प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मतलब कुछ असाइनमेंट्स के लिए अगर ये ट्रू है, सेटिस्फाई करता है ट्रू कंडीशन, तो दैट इज नोन एज सेटिस्फिएबल, ठीक है। सो एवरी टी इज सेटिस्फिएबल, बट एवरी सेटिस्फिएबल नीड नॉट टू बी अ टोटोलॉजी। तो अगर कोई टोटोलॉजी है तो उसको सेटिस्फिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। सेटिस्फिएबिलिटी क्या है? लीस्ट आई मीन लेस रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है, और टोटोलॉजी क्या है? इसी का मोर रिस्ट्रिक्टेड वर्जन है, ठीक है। तो आपके सारे पॉसिबल असाइनमेंट अगर सेटिस्फिएबल हैं देन दैट प्रोपोजिशन इज अ टोटोलॉजी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चेक करने को है।
वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, इसका ट्रूथ टेबल हमने देखा हुआ है। ये सारे पॉसिबल असाइनमेंट के लिए ट्रू नहीं है, तो ये क्या है, सेटिस्फेबल। दूसरे शब्दों में इसको कंटिंजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और क्या शब्दावली है इसकी, टॉटोलॉजी इज, टॉटल अगर कोई टॉटोलॉजी है, इसका मतलब कोई प्रीमाइस, कोई जो आपके प्रोपोजिशंस अगर टॉटोलॉजी हैं तो उसको वैलिड बोलते हैं। अगर कोई प्रोपोजिशन आपका कंट्राडिक्शन बता रहा है तो उसको हम अनसेटिस्फेबल बोलते हैं। और कुछ अगर कुछ प्रोपोजिशन जैसे मैंने बताया सेटिस्फेबल है बट नॉट वैलिड, मतलब कि कुछ असाइनमेंट्स के लिए सेटिस्फेबल है बट सारे के लिए नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी, ठीक है। नाउ वी हैव बीन गिवन टू प्रोपोजिशन, एक ये है और एक ये है। बोला जा रहा है कि चेक करो इफ दे आर बोथ इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे आप दोनों आप क्या करोगे, पहले इसमें P और Q आपके दो प्रीमाइसेस हैं, दोनों प्रीमाइसेस के लिए ट्रूथ टेबल बना लो, ठीक है, बन गई। अब आपने ये कैलकुलेट करा और ये कैलकुलेट करा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि प्रूव दैट वेदर और चेक इफ बोथ आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम विल यूज बाय इंप्लीकेशन। बाय इंप्लीकेशन में क्या होगा, अगर ये दोनों फॉल्स फॉल्स हैं तो ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो इन दिस वे सिंस बाय इंप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑलवेज ट्रू, तो हम ये कह सकते हैं दैट बोथ these two proposition are equivalent, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो two proposition are equivalent if they have some same truth table, okay, or there or both two proposition are said to be equivalent if the by implication of both the proposition yields turns out to be a tautology, ठीक है। तो बाय इंप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज टर्न्स आउट टू बी अ टॉटोलॉजी, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब एक चीज और, बिफोर वी गो इनटू सम ऑफ द आइडेंटिटीज ऑफ दिस लॉजिक चैप्टर, एक चीज और आपको बतानी है, दैट इज ड्यूल, ओके। तो ड्यूल क्या होता है, हिंदी में इसको द्वैतता का नियम कहते हैं। ड्यूल ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन, ओके, हैविंग एनी ऑफ द कनेक्टिव्स, ठीक है। किसी भी कंपाउंड या कंपोजिट प्रोपोजिशन का ड्यूल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप अगर आपके बेसिक कनेक्टिव्स हैं तो उस प्रोपोजिशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कंजंक्शन को आप डिसजंक्शन से रिप्लेस करोगे, डिसजंक्शन को आप कंजंक्शन से रिप्लेस करोगे। अगर बीच में कहीं ट्रू आता है तो उसको फॉल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फॉल्स आता है तो उसको ट्रू से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो जैसे P डिसजंक्शन Q का अगर ड्यूल बोला जाए निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसमें ट्रू फॉल्स तो कहीं है नहीं, सिर्फ एक ही ऑपरेटर है डिसजंक्शन, तो हम इसको चेंज कर देंगे कंजंक्शन, ओके। तो ये आपका ड्यूल निकल जाएगा ऐसे, ओके। नाउ इफ S is a compound proposition, कोई एक S एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, देन S एस्ट्रिक इज अ ड्यूल ऑफ S, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम का ड्यूल, अगर किसी भी स्टेटमेंट का दो बार ड्यूल निकालेंगे तो वही स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने जो रूल्स देखे हैं जस्ट उससे भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, अगर कोई दो प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट है तो इनके ड्यूल भी इक्विवेलेंट होंगे। यहां से आप चेक कर सकते हो, किसी भी एक प्रॉब्लम क्या होता है, अपने ही ड्यूल के इक्विवेलेंट होता है, यानी किसी भी स्टेटमेंट का दो बार ड्यूल निकालोगे तो वही स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है वो भी ट्रू होगा, ठीक है। अगर दो प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट है तो उनका ड्यूल भी इक्विवेलेंट होगा। अब कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ये कुछ कुछ वैसे ही हैं, ठीक है। कंजंक्शन डिसजंक्शन क्या है आपके, एंड और ऑपरेटर है, नॉट। तो बेसिकली ये बूलियन अलजेब्रा ही है। तो ये वाला जो आइडेंटिटी है, लॉजिक है, ये बूलियन अलजेब्रा के ही है। तो आइडेम्पोटेंट क्या होते हैं, आपके कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन आर आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है, कितनी बार भी इस ऑपरेशन को
सेम वेरिएबल पे अप्लाई करोगे द रिजल्ट विल बी सेम। तो P कंजंक्शन P डिजंक्शन P इज P, P कंजंक्शन P इज आल्सो P, दिस इज आइडम्पोटेंट। ठीक है, अब अगर हम किसी प्रोपोजिशन के साथ डिसजंक्शन लेते हैं यूजिंग फॉल्स, तो हमें वही वेरिएबल रिपीट मिलता है, और अगर हम ट्रू के साथ कंजंक्शन लेते हैं तब भी हमें सेम वेरिएबल रिपीट होता है। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी। ओके, नाउ द थर्ड वन इज डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब क्या है? अगर हम किसी स्टेटमेंट या किसी प्रोपोजिशन का कंजंक्शन डिसजंक्शन लेते हैं यूजिंग ट्रू वैल्यू, तो आपको ट्रू ही रिटर्न होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिसजंक्शन में क्या है, कोई भी आइदर साइड ऑफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, बट यहाँ पे तो साफ साफ ट्रू लिखा हुआ है, और डिसजंक्शन है तो क्या होगा, यही ट्रू इधर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कंजंक्शन के केस में हम जानते हैं कि कोई भी एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है। इसका मतलब क्या है, कंजंक्शन फॉल्स के साथ किसी भी स्टेटमेंट का कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। दिस इज नोन एज डोमिनेशन। ठीक है, निगेशन। निगेशन क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का निगेशन, किसी भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन का निगेशन, उस वेरिएबल का निगेशन उस अपने ही स्टेटमेंट के निगेशन के साथ अगर हम डिसजंक्शन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू, और अगर कंजंक्शन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। दिस इज निगेशन। ठीक है ना, डबल निगेशन। डबल निगेशन को इन्वोल्यूशन भी बोलते हैं। डबल निगेशन इज आल्सो नोन एज इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है, द डबल निगेशन ऑफ अ वेरिएबल इज सेम। ठीक है, तो दिस इज आल्सो नोन एज इन्वोल्यूशन, INVOLUTION। ओके ना, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में क्या होता है, ऑपरेटर जो आपके प्रोपोजिशंस हैं उनके ऑर्डरिंग पे कोई फर्क नहीं आता है। मतलब कि P कंजंक्शन Q इज सेम एज Q कंजंक्शन P, और P डिसजंक्शन Q इज सेम एज Q डिसजंक्शन P। ओके, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव। तो ये आपका क्या होता है, लॉजिक जो होते हैं ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव कौन कौन से, इम्प्लीकेशन की बात नहीं हुई है यहाँ पे, ओनली ओनली कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन आर कॉम्यूटेटिव। वैसे तो बाई कंडीशनल भी है बट नॉट इम्प्लीकेशन, यू कैन चेक दिस। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, इफ सेम वेरिएबल इज अप्लाइड ऑन टू और मोर, if same operator is or same connective is applied on two or more propositions, so this application can be done in any order। ठीक है, तो either you can first calculate Q डिसजंक्शन R, और पूरे के साथ आप डिसजंक्शन ले लो P का, या फिर पहले दोनों का डिसजंक्शन ले लो और तीसरे का उसके साथ डिसजंक्शन ले लो। ओके, सेम इज डन विद, सेम इज ट्रू फॉर कंजंक्शन एज वेल। ठीक है, यू कैन परफॉर्म इन एनी ऑर्डर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि अगर किसी किसी एक वेरिएबल का कंजंक्शन ले रहे हो आप दूसरे वेरिएबल के साथ में, और उसी वेरिएबल से फिर एक डिसजंक्शन लेते हो, तो योर आउटकम विल बी द सिंगल वन। ठीक है, इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखना चाहें, तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज P, और ये चीज क्या है, P इंटू क्यू। P इंटू क्यू मतलब P कंजंक्शन Q, जिसको हम PQ भी बोलते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो P और P कंजंक्शन Q, तो P कितना हो गया आपका, ये पूरा है, P इज दिस एंटायर वन, प्लस P और दिस वन, क्या रिजल्ट आएगा, P। नाउ गॉट इट। सेम लॉजिक डिसजंक्शन के साथ भी चलेगा, आप ऑपरेटर चेंज कर लो, ड्यूल निकाल दो। ठीक है, तो ड्यूल क्या होता है, बेसिकली दोनों साइड का ड्यूल निकालोगे। अभी चूंकि ये क्या है, प्रोपोजिशन है, दिस इज अ प्रोपोजिशन P1, दिस इज अ प्रोपोजिशन P2। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट होते हैं तो इनका ड्यूल भी इक्विवेलेंट होता है, हमने ऊपर देखा है, तो इनका ड्यूल निकाल लो। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाइड हियर।
तो जस्ट पॉज अ वीडियो, एक बार रिपीट करके आप दोबारा देखो. नाउ यू विल गेट द रीजनिंग. एब्जॉर्प्शन लॉ क्यों ट्रू होता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमार्गन्स थ्योरम. डिमार्गन्स थ्योरम और डिमार्गन्स लॉ क्या होता है. अगर हमें किसी भी प्रोपोजिशन पे, किसी भी कंपोजिट प्रोपोजिशन पे निगेशन ऑपरेशन करना होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है. कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाएगा, डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा. ठीक है. और क्या होता है, बाकी जो ये निगेशन साइन है वो इंडिविजुअल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं. ओके. तो पहले वाले का ड्यूल हो गया ये. यू कैन चेक दिस. हमें सिर्फ एक चेक करना होता है, बाकी दूसरा हम ड्यूल से बना सकते हैं. बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है. दिस कंजंक्शन, दिस डिसजंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर कंजंक्शन. इन द सेम मैनर दिस कंजंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिसजंक्शन. तो क्या होगा, अगर P का हम इस टोटल जो प्रोपोजिशन है, कंपोजिट प्रोपोजिशन, उसके साथ डिसजंक्शन करना चाहते हैं तो आउटकम क्या आएगा. P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q, और Q के साथ जो सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा बीच में. और बाकी बचा क्या, P अगेन और दिस R, P कंजंक्शन R. और कंजंक्शन यही वाला है. ठीक है. सॉरी, डिसजंक्शन ये वाला. ठीक. तो जो बीच का कंजंक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो बीच का कंजंक्शन है वो उठ के इधर आ गया. ठीक है. और बाकी डिसजंक्शन, दोनों का डिसजंक्शन करेंगे. Q P का डिसजंक्शन दोनों के साथ होगा, P एंड R. ठीक है. बाकी ये इसका ड्यू. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव. तो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ईच अदर. ठीक है. तो जैसे अगर मैं कहूं कि ओके, इसको अगर बोला जाए आपको और सॉल्व करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं कि ये तो आपका P डिसजंक्शन Q हो गया, ऐसे ही लिख दो. और यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q. और ये मालूम है कि आपका डिमार्गन थ्योरम होता है. अगर हम दोनों से निगेशन खींच के बाहर ले जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. और आप देखो कि दिस इज सम प्रोपोजिशन P, और एग्जैक्ट उसी का रिप्लिका इधर है P निगेशन साइन के साथ. तो क्या है, दोनों का डिसजंक्शन, दोनों का कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स. So this is solved. Okay. Now, one of the last topic, well-formed formula. Well-formed formula का मतलब क्या होता है, every proposition, every singleton propositional variable is a well-formed formula. Well-formed formula मतलब it is been derived using the proper rule and functions. ठीक है. तो एक सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल प्रोपोजिशन, एक अपने आप में वेल फाउंड फार्मूला है. ठीक है. If P is a WFF यानी कि well found formula, then negation of P is also a well found formula. ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा. अगर P आपका एक well found formula है, अगर P एक well found formula है तो ब्रैकेट के अंदर negation of P is also a well found formula. ठीक है. Similarly, if P and Q are two WFF यानी कि दो well found formula है, then ब्रैकेट के अंदर P कंजंक्शन Q, ब्रैकेट के अंदर P डिसजंक्शन Q, ब्रैकेट के अंदर P implication Q एंड ब्रैकेट के अंदर P डबल implication Q आर आल्सो वेल फाउंड फार्मूला. ठीक है. अब इस पूरे प्रोसेस को जनरलाइज करते हैं. any propositions that are formed using the application of rule 1, 2 and 3 are also a well formed formula. ठीक है. कोई भी प्रोपोजिशन अगर रूल नंबर 1, 2, 3 के एप्लीकेशन के साथ मिलकर बना है, किसी भी ऑर्डर में ये 1, 2, 3 रूल्स अप्लाई करने के बाद जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो भी एक वेल फॉर्म फॉर्मूला होगा. ठीक है. नाउ प्रीसिडेंस. प्रीसिडेंस क्या होते हैं, किस ऑर्डर में इवेल्युएशन होगा. ठीक है. तो क्या है प्रीसिडेंस, इन सारे कनेक्टिव्स के क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि यूनिरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हमेशा सबसे ज्यादा होता है. तो सबसे पहले निगेशन, देन कंजंक्शन, देन डिसजंक्शन, फिर इम्प्लीकेशन एंड देन लास्ट में डबल इम्प्लीकेशन. ये इनकी प्रेसिडेंस है. तो अगर ब्रैकेट्स नहीं दिए गए हैं तो प्रेसिडेंस का यूज करके आप बता सकते हो, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, सबसे पहले निगेशन को ध्यान में रखा जाएगा. ठीक है. उसके बाद कंजंक्शन, देन डिसजंक्शन, फिर इम्प्लीकेशन एंड देन बाय इम्प्लीकेशन. ठीक है.
तो जैसे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अब जो आउटकम आएगा उसके साथ इसका एप्लीकेशन लेंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है अगर ब्रैकेट नहीं गिवन है तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है। अब लास्ट थिंग, इक्विवेलेंस यूजिंग इम्प्लीकेशन, लॉज ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या कहता है लॉज ऑफ इम्प्लीकेशन, उसके क्या नियम है? ओके, तो दिस इम्प्लीकेशन इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। आपके पास दो प्रोपोजिशन है और हम बोल रहे हैं कि बोथ आर इक्विवेलेंट। कैसे चेक करोगे बोथ आर इक्विवेलेंट? ट्रूथ टेबल बना लो, एक साइड में क्या लिखेंगे, एक साइड में लिख लो पी पी क्यू की सारी वैल्यू, सारी पॉसिबल असाइनमेंट इधर कर लो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू ले लिया एक तरफ, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू एक तरफ ले लिया, ठीक है। जब पी और क्यू के सारे पॉसिबल असाइनमेंट, यानी कि 4 असाइनमेंट बनेंगे ना, 4 असाइनमेंट बनेंगे, आप चेक करोगे तो दीज टू प्रोपोजिशन विल बी इक्विवेलेंट, ठीक है। चेक करके देख लो, आई हैव नॉट डिस्कस दिस, ये आप अपने अपने आप से चेक करके देख लो, ठीक है। अब दिस इज द लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन। अब इसकी सहायता से हमें क्या रूल्स मिलते हैं, लेट अस सी दैट दिस दिस इज सिंपल इम्प्लीकेशन, और वो उसकी वैल्यू हो गई ये, दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे निगेशन कर दिया, पी का निगेट कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ से निगेशन हट गया, यहाँ से निगेशन हट गया, ठीक है। फिर अगर हमने दूसरे साइड में क्यू में निगेट किया तो क्या होगा, डिसजंक्शन अगर हम अभी भी ले आते हैं तो दोनों का निगेशन होगा, ठीक है। तो जिस वेरिएबल को हम निगेट करेंगे अदर साइड वो फिर से निगेट हो जाएगा। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे P और Q में निगेशन नहीं है, तो हमारा डिसजंक्शन के साथ में इधर P निगेटेड होगा और Q नॉन निगेटेड होगा। अगर किसी इस साइड में, लेफ्ट साइड में आप किसी भी वेरिएबल को निगेट करोगे तो अदर साइड में उसका सेम इफेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल P को हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा निगेट किया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, P का डबल निगेशन हो जाएगा, यानी कि P का डबल निगेशन मतलब P, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इधर Q को निगेट करते हैं तो P का निगेशन तो रहेगा ही, साथ में Q भी निगेट हो जाएगा, ठीक। व्हाट इफ अगर हम दोनों को निगेट कर देते हैं तो क्या होगा, दोनों को निगेट करेंगे तो ये डबल निगेट फिर से हो जाएगा और ये सिंगल निगेट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इक्विवेलेंट फॉर्म्स, जस्ट गो थ्रू इट, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन इट, ठीक है। तो जैसे अब बोला गया कि P इम्प्लीकेशन Q के कौन से फॉर्म इक्विवेलेंट है, तो वी है, आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, ठीक है, यू कैन सिंपली चेक, ठीक है। और एक तो हमने डिसजंक्शन फॉर्मूला देखा था, और डिसजंक्शन को क्या है आप कंजंक्शन में भी चेंज कर सकते हो यूजिंग डिमार्गन थ्योरम। ये क्या होता है, दिस इज P इम्प्लीकेशन Q, ठीक है। डिसजंक्शन फॉर्मेट में अगर हम इसको कंजंक्शन फॉर्मेट में लेके आए तो क्या होगा, अगर हम बाहर एक निगेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अंदर इंडिविजुअल वेरिएबल्स का निगेशन होगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन तो चेंज हो गया, इधर कंजंक्शन हो गया, और P का निगेशन करेंगे तो क्या हो गया, डबल निगेशन यानी सिंगल P, और Q का एक सिंगल बार टाइम निगेशन किया तो ये रिजल्ट, ठीक है। तो दीज आर some of the most popular equivalent forms of negation. Okay, so okay, this was your logic part introduction, and more to follow from next lecture onwards. So thank you all for joining.